So this is the learning objective which we are going to cover. Let me show you this one, the two which were left. Okay. So first is recognize and calculate squares, cubes, square roots and cube roots. Okay. Before we start, so let me just help you clear this thing, that that ना आपके teachers आपको बताते हैं कि in maths every operation is having a reverse operation. Like if we are multiplying, what is the reverse operation of multiplication? It's division. Okay. So reverse of operation of multiplication is division, or reverse operation of division is multiplication. That's why I'm putting this arrow with both heads. Okay. So what is reverse operation of a plus? Minus. Minus. Okay. And vice versa. अगर minus कर रहे हैं, you want to reverse it, so you can just plus it again. Okay. So same is the case here. If you are taking square of a number, okay, if you are taking square of the number and you want to remove the effect, so then you need to take square root. Okay, so taking square of a number and taking square root of the number, they are reverse operations. Is this point clear? Like अगर मैं कहूँ ना 2 का square is 4, so I have taken square root, square. ठीक है, और अगर मैं कहूँ 4 का square root, so that is 2, so the original number is coming back. Are you getting this point? So square is reverse operation of square root. Your square root is reverse operation of square. Okay. So same is the case with cubes and cube root. So cube numbers are the reverse operations of cube roots. Okay. So same is the case if you are taking 4 power. For example, if you are writing 3 ki power 4. Okay. And whatever is the answer, if you want to remove that effect, so you want to take the root of that answer with the base 4. ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अलावा भी तो रूट्स है ना, जैसे 4 बेस का रूट है, 5 बेस का रूट है. ठीक है, सो आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर नंबर्स जो पावर्स होती हैं वो रिवर्स ऑपरेशंस हैं रूट्स की. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर्स एंड क्यूब नंबर्स एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स. ठीक है, सो सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज एस्टिमेट. Like if you cannot find the exact answer, sometimes when the roots are not I must say solvable roots, so then how can you predict the estimated answer? Like that square root of 9 is 81 is, what is square root of 81? 9. Very good. So what is square root of 85 then? We don't know the answer because 9 point something, 9 point something. So that is why this word is used, estimate. क्योंकि हम उन numbers का square root तो easily ले सकते हैं which are square numbers. लेकिन if the number is not a square number, so then what to do? Then we can predict or estimate the answer. We know that the answer is between 9 and 10 and it is more close to 9. Okay? So that is this third learning objective, which is estimate. When you cannot find the exact answer, so how you are going to estimate the answer, right? So is it clear what we are going to do in the class today? Yes. Right? All right. So now we are going to list down, क्योंकि ये आपको आने चाहिए, first 10 numbers. ठीक है, I'm going to write down numbers, their square numbers, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए. ठीक है, and their cube numbers. So let's have this practice. What is the square number of 1? What is a cube number? ठीक है, and so on. ठीक है, so ये we will list them down और ये आपको इतने तो memorize होने चाहिए. 10 first 10 square numbers आपको याद होने चाहिए, mostly आपको आते भी हैं. first 10 cube numbers भी आपको याद होने चाहिए. ठीक है, ताकि आप ऐसा कोई नंबर आ जाए तो आप फौरन देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये तो इसका क्यूब है. ठीक है, सो इसके बाद जो इससे बड़े स्क्वायर और क्यूब नंबर्स हैं वो हम मेमोराइज नहीं करते हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, जो आपने 6 में भी पढ़ी है, 5 में भी पढ़ी है. ठीक है, सो इससे बड़े नंबर्स के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे. ठीक है बेटे, so let's start with 1. So what is square of 1? 1, right? What is cube of 1? 1 again. ठीक है, so 1 is the only number in maths which is a square number, a cube number and a normal number as well. ठीक है, इसका square भी वही है जो cube है और इसका the number is also the same. अच्छा, what is 2? What is the square number of 2? So keep telling me, both of you, bete. What is square of 2? 2 square. 4. What is 2 cube? 8. 8. Very good. 8. Very good. So now what is 3 square? What is square of 3? 9. What is 3 cube? 27. 27. Very good. So now what is 4? What is 4 square?
16. 16. What is 4 cube? 64. 64. 64. What is 5 square? 25. 25. 25. What is 5 cube? 125. 125. Excellent. So now what is 6 square? 36. 36. What is 6 cube? 260. 216. 216. ठीक है 216. Very good. What is 7 square? 49. 49. 49. What is 7 cube? 220. No. It is 343. Right? 49 को दोबारा 7 से मल्टीप्लाई अगर करें ना तो 7 9s are 63 और 7 4s are 28 और 6 कितना होता है 34. ठीक है तो 343 is the cube number of 7. ठीक है ये आपने मेमोराइज करना है. What is 8 square? 8 square is 64. 64. And what is 8 cube? Can you find out what is 64 into 8? 512. ठीक है Yes. It's 512. ठीक है So what is 9 square? 9 square is 81. Yeah. Mohit, what is 9 cube? What is cube of 9? 729. 729. Now the last is 10. What is 10 square? 100. 100. What is 10 Thousand. cube? 1000. 1000. So now just look at them closely. Okay. What can you see in the square numbers? How many square numbers are there in first 100? How many? How many bete? 10 square numbers in first 100 numbers. जो natural numbers first 100 है ना 1 से 100 उसमें there are only 10 square numbers. You can see that the smallest is 1 and the biggest is 100. So how many cube numbers? First 100 में कितने cube numbers हैं? Just 4. Can you see that? Just 1, 8, 27 and 64. Just 4 cube numbers. और first 1000 में कितने cube numbers हैं? I cannot hear your voice. Ma'am, 10. जी you can say they are how much lesser in the numbers in the counting. ठीक है अगर first 100 numbers की बात करें तो there are only 10 square numbers. बाकी 90 क्या है square numbers नहीं है. पहले 100 numbers की बात हो रही है. तो अगर मैं इनके square roots लूं तो ये rational आएंगे. बाकी 90 square roots are irrational. ठीक है that's why yesterday I told you irrational roots ज्यादा हैं rational roots कम है. ठीक है so now just look at the cube numbers. First 1000 numbers में 1000 में just 10 cube numbers हैं बाकी सारे क्या हैं cube numbers नहीं है उनका cube root लेंगे तो वो irrational आएगा इन 10 number का cube root सिर्फ rational होगा. Are you getting the point? So ये वो numbers हैं जिनका आंसर हम accurately prime factorization से निकाल सकते हैं. इनके अलावा जो numbers हैं उनका आंसर हम accurately नहीं निकाल सकते तो उनको हम क्या करेंगे estimate करेंगे. Are you getting the point? Is this point clear? Yes. मोहित आपका? Yes, ma'am. All right. So now let's start with the simple worksheet. आपने attentive रहना मोहित मुझे आंसर बताते जाने हैं बारी बारी ठीक है So we will do this worksheet because ये ज्यादा simple है book के question थोड़े ज्यादा मुश्किल है मतलब थोड़े इससे मुश्किल. So you need to tell me the answers one by one. Abrish, what is square of 9? Ma'am, 81. 81. Very good. So Mohit, what is square of 50? Ma'am, square of 57. 200. 2500. Very good. 5 का square is 25 और 10 will be doubled. ठीक है इस तरह आपने निकालना है. What is square of 200? Abrish, 2 का square is 4 and ये double 0 2 zeros है तो now there will be 4 zeros. ठीक है so 200 का square is 40,000. 40,000. Right? So now what is square of 444? So you will multiply 444 with 444. It would be such a big number, you know. So you have learned maybe in science that growth of bacteria is exponential. हम एक word use करते हैं exponential.
हम कहते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये है कि इफ देयर इज अ बैक्टीरिया और देयर इज अ वायरस, सो दैट कीप ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। पहले एक जर्म होगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, देन इट विल बी 8। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है, पहले 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है। इट कीप्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर वो बैक्टीरिया इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है कि इट टर्न्स इनटू अ डिजीज में भी, राइट। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है व्हेन यू आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। So 444 will turn into, I don't know, 5-digit number maybe. ठीक है, so इसको Ma'am, मल्टीप्लाई करें it तो will क्या आंसर turn है? it. No, ma'am, it will turn into 197,136. 136. So it's such a big number. It was a 3-digit number. Now it is 6-digit number after just taking the square of this number, right? Yes. So now the cubes. आप cubes इससे भी ज्यादा grow करेंगे. This is just to have you, ताकि आपको एक idea हो जाए. What is Ma'am, cube of 9? ma'am, 9 cube is 9 329. cube is 329 तो नहीं है. 10 का cube is 1000. So ये उसके करीब करीब होगा ना. 9 cube was, वही तो आपको याद है? देखिए 8 का क्यूब इज 512. Ma'am, 9 cube is 729. Very good. It is 729. Such a big number, as compared to 9. 729. What is cube of 50? 50 का क्यूब उसी तरह निकालेंगे. 5 का क्यूब इज 125 and this is 10. तो जब आप क्यूब लेते हैं तो it will be 3 zeros. ठीक है, so it will be 125,000. 25,000. That's right. Such a big number, Taking cube of a number means you are taking it 3 folds. आप उसको इतना बड़ा बना रहे हैं. अब देखो 200 का 200 cube भी उसी तरह लेंगे. 2 का cube is 8 and there are 2 zeros. Sorry, 2 cube is 8 और 2 zeros हैं, तो how many zeros will come in the answer? Cube लेने के बाद we will be having 6 zeros. Just Yes. look at this number. It is 8 million. Such a big number. ठीक है, so what would be the cube of 444? इसका स्क्वायर लिया था तो ये 6 डिजिट था. आप तो ये I don't know 9 डिजिट बन जाएगा. So can you find it? What is cube of 444? Cube of 444. Ma'am, 87 million 528,384. Just look at this number. Just cube of 444. So this is how these numbers work. ठीक है, ये बहुत पावरफुल नंबर है. आपने आपने ये 8 डिजिट नंबर लिखने की बजाय ये लिख दिया कि दिस इज 444 क्यूब. गेटिंग द पॉइंट? तो ये तो आपने इस नंबर को समझे श्रिंक कर दिया ना, आपने उसको आसान कर दिया लिखने के लिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज़ ये आगे अब आपके चलता जाएगा ये टॉपिक ना. अच्छा, नाउ दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग. ऑलराइट, सो व्हाट इज स्क्वायर? जब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, यू नो दैट ना, दिस इज द सिंबल ऑफ रूट. अगर रूट की बेस, यहाँ पर रूट की बेस होती है, अगर बेस में कोई नंबर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली क्या बेस होती है? 2 बेस होती है. ठीक है बेटे, यानी अगर इफ द बेस इज नॉट मेंशन्ड तो बेस हमेशा 2 होती है. 2 इज द बाय डिफॉल्ट बेस ऑफ रूट. ठीक है, उसके अलावा भी कोई भी रूट होगा ना, क्यूब रूट है तो उसका हमेशा यहाँ पर 3 लिखा होगा. जी, this is root square of root. 49 is 7. Very good. So this is square root of 49. So this is 7. This is square root of 324. क्या आपको याद है 324 किसका स्क्वायर रूट है? नो ना, हमें तो 100 तक याद है. तो हम इसकी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. अब्रिश और अब्दुल मोईद, आपको याद है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? Yes, ma'am. So we divide Ma'am, only we with can prime numbers. divide it with 2. Divide it with 2. So it would be, what is half of 324? 162, right? So we can still divide it with 2. So half of 162 is 81. 81. Now we can divide it with 3. 9 से करना ही नहीं है And because 9 is not a prime factor. Prime number नहीं है. ठीक है, हमने सिर्फ prime number से divide करना होता है. So 3 को divide करें तो it will be 27. Again with 3. 3 9s are 27. Then again with 3. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So the prime factorization is, अच्छा अब because अब ये important बात है कि these are the prime factors, right? लेकिन because this is base 2 है ना, it's a square root. तो हम इसको groups of 2 में लिखेंगे. Like we will write down like this. Like we will make groups of 2. Like this is 2 square multiplied with 3 square. इससे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे जब 5 में या 6 में, तो आप इसको एक लाइन में लिख देते थे कि आप इस तरह लिख देते थे. If I change the color and tell you, आप इस तरह लिखते थे ना, आप कहते थे 324 is equal to 2 cross 2 cross 3 cross 3. ऐसे आप लिखते थे ना. no, Into ma'am, 3. I write in the form of the form of you write.
ऑलराइट, सो या फिर हम यूं लिखते थे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, बट नाउ आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट, सो हम स्क्वायर रूट को हमेशा 2 की पावर में लिखेंगे, लाइक हम दो दो के ग्रुप्स लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो फिर हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाते, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 3 स्क्वायर, और इसका हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट। अब आपको मैंने शुरू में बताया कि रूट, स्क्वायर रूट इज रिवर्स ऑपरेशन ऑफ दिस स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो द आंसर वुड बी 2 into 3 into 3. So if you multiply it, 3 3s are 9, मैम 9 आंसर इज 2s are 18। 18. So इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल्दो हमने इसको याद नहीं किया हुआ था कि ये किसका स्क्वायर है, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 is 18. अब्दुल मोहित, ये बात समझ आ रही है बेटे? मैम मैम नेक्स्ट वन, मैम नेक्स्ट वन स्क्वायर इज 11, दैट्स राइट, वेरी 121। गुड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 ये तो हमने मेमोराइज किया, ये तो कॉमन सा है, आई नो इट इज 11, ठीक है। आई कैन डिवाइड इट आल्सो, ये 11 से ही दो दफा डिवाइड होगा और 11 स्क्वायर बनेगा। नाउ 484, अब देखो 484 इज आल्सो अ बिग नंबर, आई डोंट नो ये किसका स्क्वायर है, सो आई नीड टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 484 किससे डिवाइड करें सबसे पहले? विद मैम विद 2। 2, तो 242, देन अगेन विद 2, सो 121। अब 121 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? मैम 3 से 3। भी नहीं कर सकते, नहीं 3 से नहीं कर सकते ना। आप देखिए, आपने जो 6 में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं ना मैम मोहित और 11। अबरीश, दोज आर 11। इंपॉर्टेंट। अब 121 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 11 से, ठीक है। और फिर 11 इन वंस आर 11, ठीक है। सो द प्राइम फैक्टर्स में अभी क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, सो वी विल मेक अप ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। सो वी विल राइट इट डाउन एज 2 स्क्वायर इनटू 11 स्क्वायर, और इसका हम क्या ले रहे हैं? स्क्वायर रूट। अब देखिए, टू दिस रूट विल बी कैंसिल्ड विद द पावर 2 बिकॉज ये उसका रिवर्स ऑपरेशन है। सो इसका मतलब है वी आर लेफ्ट विद 2 क्रॉस 11, तो 2 मैम क्रॉस 11 22। is 22. इसका मतलब है कि 484 is a square number of 22, ठीक है। ये चीज क्लियर है मोहित? यस मैम। यस मैम। राइट, ठीक है, क्योंकि आज हमने यही काम करना है, आज आपने इसी की प्रैक्टिस। अब देखिए, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 625। 625 इसका भी हमें नहीं पता, हमें डायरेक्ट आंसर इसका पता ही नहीं है, सो वी नीड टू डिवाइड इट, वी नीड टू फाइंड आउट कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो वी विल राइट डाउन 625 इनसाइड, ठीक है, एंड वी विल डिवाइड, पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। मैम 5। We will divide it with 5, कैन ठीक आई है। टेल यू तो इट्स आंसर? जी बेटे, 25। only 25 or is it 125? अच्छा, are you telling me the answer? Oh, यस yes, very good, very good. This is like the answer is 25. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. अब आपने इस पॉइंट पे याद रखना है because it is a square root, so you will make a group of 2. तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 5 square into 5 square, so that the square and the square roots are cancelled. अब ये आपके पास कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आंसर आता है 5 into 5, मैम so that is 25। 25, ठीक है। सो वैसे भी आपको पता होना चाहिए 625 is 25 square, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 625 is 25. Now this is very easy, you know the answer directly. नीचे वाले का भी आपको पता है। Can you tell me what is cube root of 8? Cube root of 8? मैम इट्स 512। No, no, no. Cube root. Cube root of 8. Cube root of मैम 8. आपने याद रखना है क्यूब रूट किसका? सॉरी 512। मैम 512। बेटे, नो 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 नो, ये आप उल्टा करें, आप क्यूब ले रहे हैं ना, आपने क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट का आंसर छोटा होना चाहिए। देखो, ये आपने याद रखना है, जैसे आप डिवीजन करते हैं तो आंसर छोटा आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बड़ा आता है, इसी तरह किसी भी नंबर का जब मैम आप 2। क्यूब लेते हैं तो वो बड़ा आंसर आता है, लेकिन जब आप क्यूब रूट लेते हैं तो वो आंसर छोटा आता है, बिकॉज दे आर रिवर्स ऑपरेशन, ठीक है। सो इसका मतलब है 8 को हमने लिखना है 2 क्यूब, so this cube and the cube root will be cancelled because they are reverse operation, and the answer is 2. 2। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। Now what is 216? इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी नंबर को लिखना नहीं याद आ रहा तो you can just do the prime factorization. 216 is basically 6 cube, 6। ठीक है। और इसका जब आप क्यूब रूट लेते हैं तो the cube and the cube root got cancelled and the answer is 6, ठीक है। आपने ये याद रखना है, जिस तरह डिवाइड करके आंसर छोटा हो जाता है ना, और मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इस नंबर को डिवाइड करें तो वो छोटा हो जाता है, इसी तरह जब आप किसी का क्यूब लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा किसी नंबर का, और जब आप उसका क्यूब रूट लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ये बात समझ आई है बेटे मोहित? यस मैम। ऑलराइट, यस सो दिस इज वेरी सिंपल। ये व्हाट इज मैम क्यूब रूट 1। ऑफ 1?
1 ही है, इसका तो आंसर ही 1 है. व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27? 27 को कैसे लिख सकते हैं? 27 is मैम 3 3 cube, right? And this got cancelled और answer is 3. अच्छा 729 किसका क्यूब रूट है? किसका क्यूब है? 729 किसका क्यूब नंबर है? 9 क्यूब है ना, अभी हमने याद देखा था. 729 is 9 क्यूब. ठीक है, और इसका कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आता है? 9. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं कि 729 9 का क्यूब है और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने इसकी मैम प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो ये बिकॉज 9 तो आ नहीं सकता, तो ये 3 से 6 बार डिवाइड होगा. यानी फर्स्ट टाइम 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9. फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 1 3. फिर 3 से डिवाइड होगा 27. फिर 3 से डिवाइड होगा 3 9 27. फिर 3 से डिवाइड होगा 3 3 9 एंड 3 1 3. सो ये इस तरह 9 आता है. ये 3 दफा 3 आ रहा है ना. सॉरी, इस दफा आपने 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं बिकॉज इट इज अ क्यूब रूट. You will say one group is this and the other group is this. So आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 cube multiply by 3 cube और उसका क्यूब रूट. अगर आप भूल जाएं कि ये 9 है, तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 3 into 3 which is also 9. ठीक है बेटा, both of the methods you can use. अगर आपको याद रह गया कि it is 729, so you can do it directly, else you need to do prime factorization. वैसे इसका solution is prime factorization. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपकी बस अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई 2 स्क्वायर नंबर्स जिनका सम भी स्क्वायर नंबर हो. कैन यू थिंक ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स जिनका सम करें तो भी एक स्क्वायर नंबर आता है? सो शुड आई ओपन द लिस्ट फॉर यू? आप मुझे बताएं, 2 ऐसे स्क्वायर नंबर कि जिनको ऐड करें तो भी आंसर स्क्वायर नंबर आता है. अब्दुल मोईद एंड अब्रिश, मैम कैन यू थिंक? फर्स्ट 8 cube is 64, 8 नहीं, square is नॉट 64 and 8 square is 64 and 4 cube is 64. नहीं नहीं, ये नहीं. दे आर आस्किंग यू के फाइंड द 2 स्क्वायर नंबर्स. क्यूब नंबर्स में जाना ही नहीं है. 2 स्क्वायर नंबर्स, ये स्क्वायर नंबर्स है सारे, फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर्स. 2 square numbers such that if we add them, so we get another square number. Abdul Moeed bete, can you understand the question? You need to look for 2 square numbers कि उनको Yes, ऐड ma'am. करें तो भी स्क्वायर नंबर आ जाए. तो can you find out 2 such square numbers? ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं फर्स्ट 10. Ma'am, इसका 2 if we plus 4 and 4 it's 8. नहीं, एक जैसे 8 इज नॉट स्क्वायर नंबर ना. 2 स्क्वायर नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी स्क्वायर नंबर हो, कोई और स्क्वायर नंबर. 2 स्क्वायर नंबर्स को ऐड करें एंड द आंसर वी गेट इज आल्सो स्क्वायर नंबर. जैसे देखो, अगर मैं कहूँ 1 और 4 को ऐड करूं तो 5 आता है. 5 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर. दे आर आस्किंग यू के टेल 2 स्क्वायर नंबर्स जिनको ऐड करके भी आंसर स्क्वायर नंबर ही आता है. तो कोई ऐसे नंबर्स ढूंढे ना जिनको ऐड करें तो आंसर स्क्वायर नंबर आए. मोहित, आपको समझ आई है क्वेश्चन? Ma'am, 16 and 20. 16 and 16 and 9. 16 and 9. Very good. So the answer Ma'am, is it's 16 and 25. 9. That's right. 16 and 9, they are both square numbers. और इनको जब हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर 25 आता है. ये तीनों ही स्क्वायर नंबर है. That's what they were saying कि identify 2 square numbers whose sum is equal to another square number. ठीक है. So now the fifth question. ये सारे ऐसे riddles type हैं. Which 2 square numbers have difference of 51? Which 2 square numbers has a difference of 51? तो ये पहले तो इनमें तो कोई नहीं, बल्कि इनमें हो सकता है. Which 2 square numbers has, इन्हीं में 10 में ही है. Which 2 square numbers has a difference of 51? Can you tell me? Out of these all, which 2 square numbers has a difference of 51? Mohit? Ma'am, 149. Very good, very good. Mohit, सारे आंसर मुझे अब्रेश ही कर रही है. 149. So if we do 100 minus 49, the answer is 51. ठीक है. ये छोटी छोटी सी riddles बनी है just so that you can think about these. The product of two numbers is 20. The product of two numbers is 20 and their sum, the sum of squares is 41. The product of two numbers is 20 and the sum of their squares is 41. तो किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20 है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. कौन से मैथ्स में दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 20 आ सकता है? मैम 5 and 4. 5 and 4. 5 and 4. ठीक है. हमारे पास 10 थोड़ी and सी 2. ऑप्शन है. सॉरी, 2 and 10 and 2. 10 ऑल्सो. ठीक है, थोड़ी सी ऑप्शंस ये है हमारे पास. 2 and 10 है या 1 और 20 है.
यही ऑप्शन है ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा आप देखिए इनका स्क्वायर का सम 41 होना चाहिए। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये तो 41 नहीं आता, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये तो 400 माना जाता है। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इस सेकंड ऑप्शन को देखें तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा, तो ये इसका तो आंसर आ जाता है 104। ये भी नहीं है। अब जस्ट लुक एट दिस वन, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आपके पास 41 आता है। तो विच व्हाट आर दोस टू नंबर्स? सो टू नंबर्स आर 5 and 4. 5 and 4। मोहित ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. ठीक है, सो बिकॉज और तो कोई ऐसे नंबर्स ही नहीं है जिनका प्रोडक्ट 20 है। ये जैसे ना रिडल्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अच्छा नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर स्विमिंग पूल एज एन एरिया ऑफ, सो देयर इज अ स्विमिंग पूल जिसका एरिया है 144, सरफेस एरिया 144 मीटर स्क्वायर। सो आपने Ma'am, एक its साइड size बता, are its size are 12 meter. वेरी गुड। सो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आपको ये बताना चाह रहे थे कि इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 144 इज 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड, सो द साइड विल बी 12 मीटर। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, सो दे आर जस्ट कनेक्टिंग दिस concept with the real life questions. Now just look at this, there are 500 children in a school. For a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows and the number of columns are equal. So how many children would be left out of this arrangement? So 500 children hai, we need to arrange them in such a way that the number of rows and columns must be equal, that a square should be formed. ठीक है, so 500 students हैं। अब ये वो वाला क्वेश्चन आपके पास जिसमें you need to estimate, आपने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो बच जाएंगे इस फॉर्मेशन से। तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, कैसे पता चलेगा? Ma'am, prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चलेगा, या आप एस्टिमेट करेंगे व्हाट इज द क्लोजेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 500? ठीक है, आपके पास 500 चिल्ड्रन है, आपने उनको अरेंज करना है, तो आप एक एस्टिमेट करेंगे। जैसे आप 500 के करीब करीब के नंबर, जैसे आपको पता है 20 स्क्वायर अगर आप करें तो 400 आता है, अगर आप 21 का स्क्वायर करें तो क्या आता है? व्हाट इज 21 स्क्वायर? 21 स्क्वायर इज 441। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये आपके पास आता है 21, और ये आपके पास आता है 4, तो 431 शायद, नहीं 4 सही लिखा मैंने, 441 आता। ठीक है, सो 21 स्क्वायर इज 441, ये बात समझ आ रही है? दैट्स राइट, इट्स 441। नाउ व्हाट इज 22 स्क्वायर? अभी हमने कहीं निकाला भी था आई थिंक सो 22 स्क्वायर, पहले ऊपर कहीं निकाला हुआ है ना 22 स्क्वायर, ये कहीं पे 482। 22 स्क्वायर इज 482। ठीक है, so now we are close to the answer. Now let's look at this one, 23 square. What is 23 square? I think so it will be more than 500. So 23 square क्या होता है बेटे? 23 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? Ma'am, 529. 529। so देखें, this is the arrangement. ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 22 रोज बनाएंगे और 22 कॉलम्स बनाएंगे, और आपके कितने स्टूडेंट्स उस रो में, उस अरेंजमेंट में आ जाएंगे? 482 स्टूडेंट्स। अगर आप 22 रोज और कॉलम्स बनाएं तो 482 स्टूडेंट्स विल बी स्टैंडिंग इन द स्क्वायर। सो कितने Ma'am, स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं? ma'am, the square of 22 is 484. I multiplied that. Oh yes, it is 484. You are right. Thank you बेटे, 484। अच्छा, so now the question is not how many students will be standing in the arrangement. Question is how many children or how many students are outside the arrangement. कितने बच्चे, कितने students बच जाएंगे? They cannot be standing in this arrangement. The total 500 है, 484 है, Ma'am, तो 16 कितने? student will be standing 16 outside of the students. arrangement. Very good. So 16 students will be standing outside of this arrangement because we are bound कि arrangement कैसे करनी है, एक square form करना है। ठीक है, so वो 16 students, अगर हम उसको एक और column बनाएं और row, तो वो they cannot be adjusted. Is this question clear to how to solve this kind of question? Mohit, is it clear? Yes. All right. Yes. What about, all right. So very good. So आप देखिए next one. The length of square field is 78 meters. There is a square field और उसकी length is 78 meters. So what is the area? Area कैसे निकालते हैं? Area of square is, what is the formula of square of area? Area of square. Abdul Moeed and Abresh, what is the area of a square? Ma'am, area
लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन असल में यहाँ पर लेंथ इनटू लेंथ ही होता है ना, बिकॉज स्क्वायर में लेंथ है। असल में स्क्वायर का एरिया अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है एल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नंबर है, इट इज 78 स्क्वायर। मैम ठीक है मैम 78 मल्टीप्लाई 78 इज 6084। 6084 यस मीटर स्क्वायर। यस So this would be the answer. ठीक है, you need to calculate it. अभी तो you can just multiply it for the paper. ठीक है बेटे। अच्छा, now the next questions. देखो, length of a side of a cube. Length of a side of a cube is 5. What is the volume? So you have recently learned volume of cube in 6th class. Can you tell me the formula? What is volume of a cube? मैम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ So basically it 125 is L cube, है ना? ये cube number है, 5 का cube. So 125 और ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये बात क्लियर है ना मोहित बेटे? यस यस मैम। All right, very good. So now the other way around. A box has a volume of 512 cubic centimeter. Cubic centimeter का मतलब है centimeter cube. मैम What is the length? मैम each side of the cube shape box is 8. That's right. So you will take square root, ठीक है, to find out L. So L will be 8 centimeter. क्यों 8 centimeter? Because 8 cube is 512. ठीक है, now what will be this? Cube has a volume of 27. So what is the length? मैम 3 centimeter. 3 centimeter. Because 3 cube is 27. आप देखिए कितना important है, पहले 10 numbers को याद करना, ठीक है? So next is, now Mohit will tell. Mohit, if the volume is 64, what is the length of one side? What is cube of 64? मैम 8. 8 तो नहीं है, वॉल्यूम है ना, क्यूब है, क्यूब 64। मैम 4. 64 4, ठीक है, 4 यूनिट्स। ठीक है, आप देखिए 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्या होगा? ये दोबारा आ गया आई थिंक सो। तो कितनी लेंथ हो जाएगी? व्हाट इज 27 क्यूब? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज रिपीटेड आई बिलीव। सो एनी क्वेश्चन इन दिस? एनीथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड? क्योंकि ये वर्कशीट तो खत्म। क्लियर? यस मोहित बेटे, इज इट क्लियर? यस। All right. So now let's solve questions from exercise 1B. I will show you which questions we need to do. Okay, we will do all those questions. Okay. So let me show you this. These are the questions. Okay, we will mark it on the book. देखो ये questions हमने करने हैं. Exercise 1B. Question 1 to 7 13, then 3 4 8 14. पहले 1 to 7 13 को mark कर लेते हैं. So this is your book. Where is the book? Can you show the question number again? जी बेटे एक मिनट, मैं बल्कि इसकी पिक्चर लेके आपको भेज देती हूँ। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन, ये सारे NSM1 के क्वेश्चन है जो आपके पास बुक है। ठीक है, इसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आई विल शेयर इट विद यू। देयर आर सम प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस आल्सो, यू कैन डू इट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, 1 to 7 13 आई विल मार्क इट हियर। ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, इसके ऊपर ही मार्क करती हूँ, फिर इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो 1 2 7 13 7 and 13। ठीक है, and after that there are 3 4 8 14. so 3 cube numbers किए, 3 4 8 14। ठीक है, and then lastly you have 5 and 9 also, सारे इसी एक्सरसाइज के 5 and 9। 5 and 9 में एस्टिमेट करना है। ठीक है, the second object। I'm taking the screenshot, I will share it with you। ठीक है, अच्छा, now we are going to like have some home task and then we will solve some questions together। अच्छा, what about question number 1? I'm zooming it. Can you do it at your, like, on your own? Question number 1, or Yes, do you want me to do one of the part? Do you want to do one part together, or you can do it as a home task? 4 questions. I can do it as a home task. All right, that's great. You solve one. We can solve one. If you want, you can solve C part. C part 29 16. ठीक है, so let's solve C part together. So let me open the whiteboard. तो दिस इज, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। जितना आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे आते होंगे ना बेटे, उतना ही आसान आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 29 16। हमने क्या निकालना है? 29 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो विद व्हिच नंबर आई कैन डिवाइड? मैम 2 with 2। ठीक है, so 2 1s are 2, 2 4s are 8, 11, 2 5s are 10, 1 again is the remainder, so 16, 2 8s are 16। ये मैंने ऊपर 1 छोटे छोटे क्या लिखे हैं, जो रिमाइंडर है उसको लिखा है। ठीक है, अच्छा, सम स्टूडेंट्स
वो क्या करते हैं, वो पहले इधर साइड पे 29 16 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 14 58 को फिर 2 से, ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये काम आपने नहीं करना, आपने, बिकॉज इट विल बी इन द पेपर में भी मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर इज 100 मार्क्स क्वेश्चन है, हाँ 100 मार्क्स है, तो यू शुड नॉट बी डूइंग इट, वैसे भी इट्स नॉट अ गुड हैबिट, जस्ट डिवाइड इट हेयर एंड यूज दिस लाइक द स्मॉलर वैल्यूज, यूज पेंसिल में भी, इससे आपको शुरू में हो सकता है मुश्किल हो, बट बाद में यू विल बी गुड एट इट, ठीक है। So I can still divide it with 2. So now what? 2 sevens are 14. No remainder. 2 twos are 4. 1 remainder है, तो यहाँ पर छोटा सा लिख लें 729, ठीक है। अब हमें 729 तो बड़ा फेमिलियर सा नंबर है, आप किससे डिवाइड करेंगे? 729 तो कोई है भी सही, आई डोंट नो, आप किससे डिवाइड करेंगे? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? 9 से तो कर ही नहीं सकते, 9 से नहीं कर सकते, 3 से करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है कि ऐड ऑल दीज डिजिट्स और द नंबर शुड बी डिविजिबल। अगर आप इनको ऐड करें तो 7 2 9 9 9 18, तो 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 2s are 6 1 3 4s are 12 3 3s are 9, still with 3 3 8s are and 3 1s are still with 3, 9 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल गो रॉन्ग, ठीक है। still with 3 3 9s are, फिर 3 से करेंगे 3 3s are 3 1s are। अब आप देखें, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट, यहाँ पर कुछ बेस में नंबर नहीं है, तो इट इज अ स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि आई नीड टू मेक अ ग्रुप ऑफ अब्दुल मोईद, आई नीड टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2, ठीक है। दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 ग्रुप्स बनते हैं। सो इट वुड बी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसको क्यों स्क्वायर में लिखना है? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट। नाउ द स्क्वायर रूट एंड दी स्क्वायर नंबर्स आर कैंसल्ड, दे विल बी गॉन, यस। और ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 क्यूब इज 27 और डबल ऑफ 27 इज 54, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। इसका मतलब है द स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज 54, ठीक है, राइट। इसी तरह आपने इसके बाकी सारे, इसका आंसर क्या आता है 54, ये इसका आंसर, ठीक है बेटे। जितना अच्छा आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं उतना ही यू विल बी गुड एट प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, now you can do the rest of the parts. Yes, ma'am. Which one we have to do as a homework? So this one, let me write it down, है ना? So this you have to do as a homework. I'm asking you also. अच्छा, what about the second question? Will you be able to do? इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही कर दिया उन्होंने, अब हमने क्या करना है? इसमें हमने क्या करना है? हमने इसको 2 की पावर बना के लिखना है। जैसे उन्होंने 2 की पावर 8 लिख दिया, तो 2 की पावर 8 की बजाय आई विल राइट डाउन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, या इसको कैंसिल आउट कर लें, आपकी मर्जी। अगर आप 2 की पावर्स में लिखना चाहते हैं दैट्स आल्सो फाइन, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको बाद में मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। व्हिच वन डू यू थिंक विल बी बेटर? इसको आप इस तरह लिखना चाहते हैं, कैंसलिंग लाइक 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ऐसे लिखना है, या इससे कंफ्यूज होंगे? आई थिंक इससे कंफ्यूज होंगे ना। आप इस 8 को ना ग्रुप्स ऑफ 2 लिख लें, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये आपके पास टोटल 2 की 8 पावर्स बन जाती हैं। सिमिलरली आप 3 की पावर 4 को लिख लें, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 5 इज ऑलरेडी पावर ऑफ 2, ठीक है। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सारी पावर्स और रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर में ये बचेगा 2 क्रॉस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू। अब इसको सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 की 4 पावर है तो कितना आता है 16, 16 इंटू 3 3s are 9 और इंटू 5, ये आपने बस मल्टीप्लाई करना है, तो दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है बेटे। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन? विल यू बी डूइंग इट एज अ होम टास्क? क्यूब रूट्स फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मोहित ओके? मैम 3 क्वेश्चंस आर इनफ। दीस फर्स्ट 3 या ये फोर्थ दे दूं? फोर्थ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ओके मैम, गिव इट। फोर्थ, क्योंकि ये आसान है, इसमें क्यूब रूट बनाने। मोहित ठीक है? These are the homework questions. I will share the screenshot. ठीक है बेटे, first 4 questions. So we are not going to do fifth now because ये estimate का question है। हम इसके थोड़े advanced level questions करते हैं। Let's do advanced level question, ठीक है। ये इनको फिलहाल छोड़ें। अच्छा ये देखिए जी, 1 2 और 7th I believe, ये देखें 7th question में they are asking you find the smallest non-zero number, whole number, which can be multiplied by 112 to give a square number. आपने वो सबसे छोटा एक नंबर ढूंढना है जिसको आप 112 से मल्टीप्लाई करें तो योर आंसर इज अ स्क्वायर नंबर। कौन?
2, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 224 बनेगा. 224 इज नॉट, इज इट 224? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये तुक्के लगाने से तो हमें नहीं समझ आएगी. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. देखिए, हमने अननोन नंबर निकालना है. लेट मी डू इट हियर. कैन यू सी द स्क्रीन? हमने ये निकालना है एक ऐसा नंबर जिससे 112 से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, एक नंबर हमने ढूंढना है छोटा सा, जिसे 112 से मल्टीप्लाई करें तो कोई स्क्वायर नंबर आए. अब ये गैस वाला क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली सॉल्व करना है. हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम 112 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और हम देखते हैं कि कौन से नंबर इसमें से मिसिंग है जिसकी वजह से ये स्क्वायर नंबर नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ 5 आर 10 और 2 6 आर 12 बनता है. हाँ, 2 2 आर 4 और ये 16, 2 8 आर 16. फिर 2 से डिवाइड होगा 14, फिर 2 से डिवाइड होगा 7 और ये 7 into 1. ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गलत कर दी. अब देखिए 112 इज इक्वल टू, मैंने दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं. दिस इज फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन, लेकिन दिस 7 इज नॉट फाइन. इसका ग्रुप इनकम्प्लीट है. इसको मैं लिख लूंगी 2 स्क्वायर into 2 स्क्वायर, लेकिन दिस 7 इज 1 पावर 1. सो व्हाट इज द मिसिंग? क्या चीज इस 112 को स्क्वायर नंबर नहीं बना रही? मैं 1 more 7. 1 more 7. So actually it should be multiplied with 7, ताकि ये यहाँ पर एक और 7 हो जाए और ये 7 का भी स्क्वायर हो जाए और इसका जब हम स्क्वायर रूट लें तो दैट विल बी अ स्क्वायर नंबर. इज इट मेकिंग सेंस? लाइक मोहित, आपको समझ आ रही है? अब्रेश तो मुझे रिस्पॉन्ड करिए. आपको बेटे समझ आई ये बात कि हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देन वी सी कि क्या चीज है जो इस नंबर को स्क्वायर नंबर बनने से रोक रही है. तो हमने देखा है कि ये 2 स्क्वायर भी ठीक था, ये भी ठीक था. यहाँ पर 7 की 1 पावर नहीं होनी चाहिए, एक और 7 चाहिए. इसका मतलब अगर हम 112 को 7 से मल्टीप्लाई करें, नाउ जस्ट लुक एट द नंबर जो बनेगा. अगर हम 112 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14, 7 8 और ये आपके पास आता है 784. और ये इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर नंबर है? यहाँ से आपको पता चल रहा है 2 2 4 और 7 4 28. सो 28 का स्क्वायर है ये. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? सो इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको ये बताया. आप देखें इसी का 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो क्यूब नंबर बन जाए. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने ये फाइंड आउट करना है कि 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक क्यूब नंबर बन जाए. आप क्यूब नंबर में 3 के ग्रुप्स बनाने 162 को. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे मोहित और अब्रेश? सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, सो अब ये क्यूब नंबर है. जब स्क्वायर नंबर था तो हमें दो के ग्रुप्स बनाए. अब क्यूब नंबर है तो हमने 3 के ग्रुप्स बना के देखना है. सबसे पहले 8 2 से डिवाइड करेंगे तो 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो again with 3. दैट्स राइट, फिर 3 से डिवाइड करेंगे एंड अगेन विथ 3. अब देखिए दिस ग्रुप इज फाइन. ठीक है, 162 इज 2 की पावर 1 into 3 की पावर 3 into 3 की पावर 1. अब ये ग्रुप तो ठीक है, लेकिन इस ग्रुप में कितने 2s मिसिंग है? मैम 2 मिसिंग है. सो मिसिंग नंबर्स हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? यहाँ पर 1 पावर है, हमें तो 2 और चाहिए ताकि 3 हो जाए टोटल. यहाँ पर 3 की 1 पावर. दिस ग्रुप इज फाइन बट दिस इज नॉट फाइन. इसमें हमें 3 की पावर 2 चाहिए. ठीक है, तो असल में हमें क्या नंबर चाहिए? 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, सो 9 4 आर 36. So what is the missing number? 36 is the missing number. 36. अगर 162 को 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो a cube number will be formed. Abrish, can you tell me what is the multiplication answer? 162 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता? मैम 6. नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता? Like what is the cube number? मैम 5832. 5832. और हमें यहाँ से पता चल रहा है वो किसका क्यूब है? 3 3 आर 9, 9 2 आर 18. 18 का क्यूब है ये. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर?